Hey guys, welcome back to the channel. I'm Dr. Abhishek, back with another video in Sai Dental Vlogs. And if you are viewing this channel for the first time, I make videos on dentistry, discussion on dentistry, and anything regarding jobs, regarding your career, regarding whatever courses you can do after BDS. So I make videos on these kind of topics: how to make your dental clinic, how much is the investment in your dental clinic. So these are the various topics on which I make my videos. So today's topic will be about whenever a swelling case comes in our clinic, right? Sometimes the swelling is difficult to diagnose, right? So the swelling का बहुत सारा cause होता है. The swelling can be either infectious, swelling can be tumorous, swelling can be neoplastic, swelling can be cystic. So these are the various things which we need to distribute in your mind when you are watching the patient, when you are seeing the patient, right? So first of all, जब भी patient आपको clinic में आता है, एक huge swelling है right side में, so what do you see? You basically see a gross asymmetry of the face, right? अब swelling है patient का तो एक का चेहरा बिगड़ा हुआ है. Gross asymmetry मतलब चेहरा थोड़ा फूला हुआ होगा, चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा. तो बेसिकली आपको जो फेस है 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए: अपर, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3, राइट? सो बेसिकली आप जितने भी जॉ स्वेलिंग देखते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोअर जॉ में ही होते हैं, आइदर ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड और इन द मैक्सिला. सो आप बिना एक्सरे लेके, बिना कुछ पेशेंट को मतलब एग्जामिन किए कैसे जान सकते हैं किस डायरेक्शन में सर्च करना है, किस डायरेक्शन में आप किस पाथ में जाएंगे? पाथ मतलब कि अगर आप इन्फेक्शन है तो आप सोचेंगे कि ओके आई हैव टू गिव द पेशेंट एंटीबायोटिक्स. अगर कोई टूथ इन क्वेश्चन है, अगर टूथ केरियस है या फिर टूथ पेरियोडोंटाइटिस है, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द टूथ और यू नीड टू डू आरसीटी ऑफ द टूथ. तो बेसिकली अगर इन्फेक्शियस है स्वेलिंग तो बेसिकली इट्स ड्यू टू मेनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस, राइट? स्ट्रेप्टोकोकस जो है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स एंड स्टेफाइलोकोकस, दिस इज द मेन swelling causing organisms aerobic and anaerobic mixture होता है organisms का, and you give antibiotics and the swelling reduce. But even after giving antibiotics, in some cases the swelling doesn't reduce, right? What can be the cause? So at that point you have to ask the history of the patient. अब देखिए, अब swelling आ गया पेशेंट को, आपने इंट्राओरल कैविटी चेक की, आपने एक्सरे ले लिया, ओपीजी करवा लिया, लेकिन आपको कुछ भी केरियस टूथ नहीं दिखा, तो आपका इन्फेक्शियस कॉज रूल आउट हो गया. सेकंड आया आपका, आप रूल आउट हो गया मतलब कि अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है. तो मैं अब कैसे पता लगाएंगे कि डिफरेंस कैसा है इन्फेक्शन और सिस्टिक में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इन्फेक्शियस आप देखने जाएंगे तो इन्फेक्शियस में जो एरिया है स्वेलिंग के बाहर थोड़ा वार्म रहेगा. पेशेंट विल बी हैविंग लिटिल बिट ऑफ फीवर और समटाइम्स इट कैन बी हाई फीवर ऑल्सो. पेशेंट्स बॉडी विल बी इन मेलेस, पेशेंट का कुछ काम करने का मन नहीं करेगा. तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, राइट? Whenever the swelling associated with tumor or cyst comes, then at this point of time patient won't be having these kind of symptoms. Patient को वो swelling बहुत दिनों से हुआ रहेगा. Patient approximately 1 year से the swelling will be there in the patient's mouth, and the patient will give you a history like, sir पहले छोटा सा था, फिर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और उसके पहले मुझे एक चोट लगी थी. So there is always a history of trauma associated with some kind of cyst. Maximum times, sometimes there is an infection in which dental caries is there, and from the dental caries it has gone to a cyst, radicular cyst और periapical cyst में बदल जाता है. कभी कभी periapical cyst इतना बड़ा होता है कि it can even involve the condyle, the entire body and ramus of the mandible, and if it is in the maxilla it involves the entire maxilla. अभी सारे सिस्ट और ट्यूमर डिफरेंट टाइप के होते हैं. कभी कोई सिस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर उसका एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होता है, कोई सिस्ट वाइड बहुत ज्यादा होता है. लाइक फॉर एग्जांपल केराटोसिस्टिक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर जो होता है, एपी एक्सटेंशन उसका बहुत ज्यादा होता है, मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सटेंशन बहुत ज्यादा होता है. एमिलोब्लास्टोमा होता है तो वो एमिलोब्लास्टोमा जो ट्यूमर है वो मेनली बॉडी ऑफ द रेमस और जॉ में होता है, एंड इट कॉजेज अ स्वेलिंग बायलैटरली. बायलैटरली मतलब बेसिकली एक आपके बकल कॉर्टेक्स जो जीबी सल्कस है, जिंजर बकल सल्कस में स्वेलिंग होगा और लिंगुअल कॉर्टेक्स में भी स्वेलिंग होगा in case of a tumor. But in cases of a cyst, the expansion will only be unilateral. Either on the lingual side or on the buccal side, swelling will be there. So cyst is not associated with displacement of the tooth until unless the cyst is very big. But a tumor may cause resorption of the root of the tooth. कभी कभी ट्यूमर जो है रूट का रिजॉर्प्शन करा देता है तो वो आपको एक्सरे में दिखेगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूथ कराता है. तो समटाइम्स अगर हम ऑसिफाइंग फाइब्रोमा की बात कर लें तो जुवेनाइल ऑसिफाइंग फाइब्रोमा कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है यहाँ तक
यहाँ से लेकर स्वेलिंग यहाँ तक फैल सकता है, इन विच टूथ कैन डिस्प्लेस्ड अपर थर्ड मोलर मैंने देखा है लोअर बॉर्डर मैंडिबल तक चला गया है, कम से कम द अपर लोअर थर्ड मोलर कैन गो अप टू द कॉन्डाइल ऑल्सो. सो दिस काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन हैपन इन केस ऑफ अ ट्यूमर. सो व्हाई इट्स नेसेसरी, बेसिकली हम क्यों उसको, अगर आपको नहीं भी आता है सिस्ट निकालना, ट्यूमर निकालना, तो यू कैन गिव अ डायग्नोसिस टू द पेशेंट की ये सिस्टिक तरफ जा रहा है तो आपको सीबीसीटी करवाना पड़ेगा, आपको सीटी स्कैन कराना पड़ेगा. अगर इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है तो आपके माइंड में ऑलरेडी आप खेल रहे होंगे जब आप पेशेंट से बात कर रहे होंगे, तो आपको एट दैट टाइम यू हैव टू टेल दिस इज अ इन्फेक्शन एंड यू हैव टू डील विद एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स एंड यू हैव टू डू अ रूट कैनाल अलॉन्ग विद दैट एक्सट्रैक्शन. अगर सिस्ट की तरफ जा रहा है तो पेशेंट को आपको बोलना पड़ेगा इसका सर्जिकल रिमूवल करना पड़ेगा, उसका बायोप्सी रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे. अगर कोई कैंसर्स है, अब कैंसर एक टोटली अलग कैटेगरी में आता है. सबसे पहले जब कार्सिनोमा पेशेंट होते हैं तो दे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ हैबिट इन देयर माउथ लाइक स्मोकिंग और टोबैको चूइंग और पान मसाला. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कॉजेस कैंसर, प्लस अल्कोहल added to the like fire, right? So adds like chingari to the fire. So alcohol, tobacco, chronic irritation from jagged dentures or sharp tooth may cause cancer. The most commonly oral cancer जो होता है belly buccal mucosa on the lateral border of the tongue, this is the most common areas where these cancers occur. So sometimes what happens जब कैंसर आपका alveolus में होता है, मतलब कि जब आपके टीथ के साइड जो बोन है alveolus में होता है, then it may cause spread of infection, secondary infection into the bone. तो बोन क्या होता है, कभी कभी ह्यूज स्वेलिंग हो जाती है तो आपको लगता है कि ये इधर इन्फेक्शियस है एंड इट गिव्स अ वेरी फाउल स्मेल. अगर कैंसर होता है पेशेंट को बहुत ही सीवियर स्टेंच होता है एंड यू कैन सी ग्रैनुलेशन टिश्यू ओवर द एंटायर एरिया. सी नाउ इन दिस वीडियो आई एम नॉट शोइंग यू एनी काइंड ऑफ पिक्चर्स, बट इन द अपकमिंग वीडियोज मैं पिक्चर के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली उसका रेडियोग्राफिक अपीयरेंस होता है. एंड जब आप ओपीजी लेंगे एक सिस्ट का, आपको एक अच्छा सा यूनिफॉर्म सा बॉल जैसा दिखेगा, उसके अंदर रेडियोलूसेंट ब्लैकिश एरिया दिखेगा. बट इन अ कैंसर द एक्सरे विल बी मोर ऑफ अ इल डिफाइंड थिंग. इल डिफाइंड रहेगा, मार्जिन इरेगुलर रहेंगे, एग्रेसिव काफी रहेगा बिकॉज द कैंसर्स आर एग्रेसिव ग्रोथ रहा होगा जो भी, उसकी वजह से बोन लॉस इज नॉट रेगुलराइज्ड, राइट. और जो स्लो ग्रोइंग लीजन्स है उसमें बोन ग्रोथ जो है उसका बहुत ही मतलब यूनिफॉर्मली बोन लॉस होता है तो पूरा एरिया रेडियोलूसेंट होता है. बट इन कैंसर्स the tooth will be like floating on the bone, floating to the appearance. So basically you have to classify between infection, cyst, tumor and cancers. अगर ये आप classify करना सीख गए पेशेंट के ऊपर, then nobody can stop you in diagnosis and you can diagnose each and every case. So first of all, first remember here thing, whenever patient walk into your clinic, don't ever think that is only just an infection. It can be anything, any other thing. So if you wish to write any investigation on the patient, please do write an OPG and you will have a clear picture of what and all lesions are there, what all carious tooth are there. If you don't have a OPG center near your area, then you can take the full mouth IOP of the patient. That will give you a very good diagnosis and a very good overall view of the oral cavity of the patient, right? And history is very important. You have to ask each and every history of the patient. History will only tell you the diagnosis, history will only tell you the answer. And why I am telling history is important, because in history you will get those kind of points like fall from the tree or trauma in the face, so that will lead to the hint, okay, this can be the diagnosis. So ask history of the patient, total history. Ask about the medical history, family history, personal history, then you ask about marital history, then you ask about any kind of deleterious habit ka history. So these 5 histories is important to ask from the patient before starting any procedure, any kind of dental treatment. So if you like my video, please do give a like, thumbs up, and और regular videos में डालता रहूँगा. Dental considerations in kidney failure patients, dental consideration in pregnant patients. So I'm gonna make this series. And अगर आपने मुझे Instagram में follow नहीं किया है तो अभी जाके Instagram में follow करिए. मेरा ID है Sai Dental Vlogs, and if you have some query, you can message me. एंड एक और मुझे मैसेज बोलना था अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, अगर आपको मेरा मैसेज का रिप्लाई टाइम पे नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आई एम सम काइंड ऑफ बिजी. मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ. आजकल मैं वॉइस मैसेज से रिप्लाई कर देता हूँ ताकि मुझे टाइप करने में ज्यादा टाइम न लगे. जितना हो सके आई एम रिप्लाइंग टू द मैसेजेस ऑफ माई सब्सक्राइबर्स एंड माई व्यूअर्स. आई नो योर इंपॉर्टेंस, बिकॉज ऑफ यू पीपल ओनली आई एम देयर. ओके, सो अगर आप लोग नहीं रहेंगे, आपके आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर्स मैं नहीं दूंगा तो फिर लाइक इट विल बी वेरी बैड
पार्ट ऑन मी। और काफी लोग मुझसे काफी उटपटांग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि सर आपकी मंथली सैलरी कितनी आती है, सर आपका कॉलेज से कितना सैलरी आता है और इससे कितना, सर आपका फोन नंबर दे दीजिए। सी इफ आई पुट माई फोन नंबर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, इट विल बी लॉट ऑफ लाइक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज थिंग्स। दोज हु रियली वांट, अगर किसी को रियली मिलना है, रियली अगर जानना है, तो कहीं से भी मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। और इसमें कुछ मैं देता हूँ पर्सनल नंबर, लेकिन देख के कि क्या है पेशेंट। और सबसे पहले अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम, तो नियर बाई डेंटिस्ट को जाके दिखाइए, डेंटल कॉलेज में जाके दिखाइए। अगर आप ऑनलाइन बोलेंगे कि देख के बता दीजिए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू सी विद द नेकेड आई, और पेशेंट सामने नहीं रहता है, देयर इज नो हिस्ट्री आस्किंग एंड ऑल, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। हाँ, जो कि मुझे थोड़ा बहुत अच्छे से आइडिया होता है या फिर आई एम 100% कॉन्फिडेंस, उनको मैं आंसर दे देता हूँ कभी कभी। लेकिन अगर पूरी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल वाया ऑनलाइन और वाया फोन, राइट। तो अगर आपके नियर बाई में कोई डेंटिस्ट है तो प्लीज जाके दिखाइए कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि फोन से सब कुछ नहीं होता है, राइट। सो आई विल एंड माई वीडियो हियर। टिल देन हैव अ वेरी गुड नाइट, टेक केयर।